السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب. میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل کشمیر نیوز. ناظرین، آج ہم وسط کشمیر کے ضلع بڈگام میں اس وقت موجود ہیں. ضلع بڈگام میں ایک علاقہ علمنار پوشکر جن کا تحصیل خاک پڑ جاتا ہے. ہم اس وسط کشمیر بڈگام میں آج موجود ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک ایسی آپ کو ہم کہانی سے روبرو کریں گے، ایک ایسی سچی مبنی کہانی سے روبرو کریں گے جس کے بعد شاید آپ کا دل اس طرح سے گونج اٹھے گا کہ گویا یہ ایک انسانیت کی ایک کہانی ہے. کیونکہ جس بات کی میں یہاں پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ایسی خاندان کی کہانی ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے یتیم بچے ہیں ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں جو کہ اکیلے ان بچوں کے ساتھ اس وقت اس ایک کمرے میں ان بچوں کا سہارا بنی ہوئی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے والد صاحب، ان بچوں کے والد صاحب ماہ مقدس کے مہینے میں جو کہ رمضان کا مہینہ تھا جو ہم سے کچھ ہی دن پہلے گزر گیا، اس ماہ مقدس مہینے میں ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے بچوں سے اٹھ گیا، وہ انتقال کر گئے. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے یتیم بچے جو کہ آپ ویڈیوز میں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے یتیم بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا کوئی سر پہ سایہ رکھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. اکیلی ان کی اس وقت ماں ہے جو اپنی زندگی سے جدوجہد کرتے ہوئے آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. ناظرین، میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے جنہوں نے پچھلے ایک مہینے سے کئی ایک ایسے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، مگر یہ اکیلی ماں اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کا سفر کرتے ہوئے زندگی کے بہت طریقے جنگ لڑ رہی ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے زندگی میں پچھلے ایک مہینے سے کیا کچھ ہوا ہے اور کس قدر اس وقت یہ بے سہارا ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت ایسا کچھ اقتدار نہیں ہے، ایسا کچھ ان کے پاس لاہ عمل نہیں ہے کہ وہ آگے آنے والے زندگی میں اپنے بچوں کا مستقبل صحیح انداز میں روشن کر سکے. ان کے ساتھ ان کی ماں ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے انہی کی زبانی کیا کچھ مصیبتوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے پچھلے ایک مہینے سے. کیا نام؟ شاہینہ ملک. کیا دلیل؟ میون خاندار حج بیمار گو 7 ؤہری گو. اس مدد کران والا کوئی مے خاندار کران موزوری تو سور پلاوان تو بیمار تو پلاوان. اس گئی تھے کہ گزرے ستم سمت تو اس گزر کر کوئی سی اس مدد کران والا کوئی سی اس سور پڑھناون تو میں مدد میں ہم تک کیا میں موج کونی جن سور سے ترے میں ہم تک کیا سورج میں پڑھاون ویسے گزر کران سے کہ میں سورج پڑھ رہا مدد کر رہا میں سے یہ تو یتیم بچے میں سے ہکن پڑھ رہے تو کیا تہنیم خاندار تہنیم ہسبینڈ تم کر گزرے کیا دلیل تم حج پریشر تو شوگر تو ہائی پریشر گو تو چھات تو خراب تو گئے یہ 7 سم تو گزرے امس گئی نہیں ہسپتال تم جانے گھر آئی پتہ گئے بیمار پتہ گئے گزرے چھنا رپی تو نہ پتہ نہیں تو ہسپتال رٹی نہیں کیا سوچے واپس سوچے گھر وہ آئے تو راتس مجھے گزرے. اچھا میں بچہ تو رہا بہ ہیکو نا پڑھت کہ مے یتیم گمت وہ حض مدد کر میں سورس یتیم سورس میں یہ گزرت کرا. ناظرین، میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی درد والی کہانی ہے، میرے خیال میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس انداز میں یہ بیان کروں کہ ایک ایسی فیملی جن کا خالی مستقبل ان کے والد صاحب کے سر پر تھا، ان بچوں کا مستقبل ان کے باپ جو کہ پچھلے مہینے ماہ مقدس کے مہینے میں وہ ان سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ باپ کا سایہ ہر ایک انسان پر ہونا چاہے، باپ کا سایہ ہر ایک بچے پہ ہونا چاہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا روشن وہ ایک قائم کر سکتا ہے. آنے والے وقت میں وہ ایک ایسے روشن چراغ بن سکتا ہے تاکہ وہ اپنا جو مستقبل ان کا فیوچر ہوتا ہے وہ امن سے اور تعلیم یافتہ ہو کے اپنی زندگی گزار سکے. مگر یہ جو ہم آج وسط کشمیر ضلع بڈگام کے اس علاقے میں آئے ہیں، ہم نے آج سوچا کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کووڈ-19 کی ایک بیماری وبا سے اس وقت لڑ رہے ہیں. ہر ایک انسان اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے، مگر
हमें चाहिए कि ऐसे इंसानों का, ऐसे मोहताजों का, ऐसे यतीमों का भी ख्याल रखे जो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अबतर से अबतर हालातों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इनके शौहर जो कि हालिया में इंतकाल कर गए, उन्होंने शादी जम्मू कश्मीर की बेरवन रियासत जो है वहाँ से की है, मगर उसके बाद शादी करने के बाद जब उनके 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची भी है उनकी, और ये उनकी बीवी है। हालात इस कदर अबतर है कि इनके पास इस वक्त कोई भी सहारा नहीं है। अच्छा, क्या तकलीफ क्या उस दौरान? तुम्हें तकलीफ अगर छाते हुन बेगे पैसा तो सुगर। अच्छा, करन से तो कि इलाज करन से जिसके न फरक के अनन और अनन से फूस तो एमस करन इलाज एमस के की फरक की। अच्छा, करन एक बेक मदद वो मत चली में वो आनी मदद करे खलक तो वो आनी बुझे तो वो आगे सच में सम तो गुजरे है। वो गए मैं छना वह हम था ये थे एतम बच्चे छवा अच्छा में हमत के जी के सूर पढ़ना वा देखना वा सारी क्या करो मैं समझ रहा था समझ खान रखे में सूत गुजर थे ना कि गुजर बुझ के पैसा मुझे सूत के पति के बीमार पति के अस्पताल ने पति के और आए तो के गुजरे है वो बच्चे उनका तो मदद यम छ तुहिंद मासूम बच, यतीम बच, मोहताज बच वकनस यहुन सहार ओस अकिस वालिद सबस ताइन सी ओस उन पकनावा मजूर करित ओस का रपी 10 कमावा मजूर करत ओस का रकम कमावा तम पत ओस यमन बचन पे खर्च करा। ऑन कैमरास पे वन बता ये कहा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही रहेगी इंशाल्लाह रहमान, हमारी पूरी टीम रियल कश्मीर न्यूज़ की टीम पूरी टीम इनके लिए अमदाद करेगी, इनके लिए मदद करेगी जितना हमसे हो सकेगा। हम बिल्कुल इनके साथ हैं और इनके साथ बिल्कुल शाना बशाना है। हम हर एक चीज़ में इनके साथ हैं और ताउन करते रहेंगे। शुगर तो प्रेशर तो तमिस नुमियन द्रामुत तमिस छत खराब वंदस मज खे तम 3 रतन सूत तीता गुजार हेको कह अन वनकस यतीम गम सान खतर कर सारी मदद वनकस मोज हेक वनकस कहें वन पो मगर पोस कहें गो तो मदद गन कहें गुजार ये ना सवार क्या ना तमिस मालिस कुन दो बना काम दो तेल खेवान कुन सात तमिस तन तिथ कहें करान गुजारिश गसन मदद जरा तशमीन बेन ठीक है बस ऐसे बोड़ बोय समझ समझे ये कुन सूरत में से कह है। एक और बात हमारा फरीज़ा भी यही बनता है कि अगर किसी जगह भी कोई इंसान मोहताज है, कोई इंसान यतीम है, हमें चाहिए कि वहाँ पर जाए, वहाँ पर देखे, उनके लिए अमदाद करे, उनकी मदद करे। दानिश अनाज कत क्लास पढ़ा? थर्ड पढ़ा। ये देख सकते कि देखिए एक ऐसी ज़िंदगी मैं कहूँगा कि हम एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ते हैं। हर एक इंसान ज़िंदगी में कुछ कमा के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का असूल है कि आपको कमाना भी है, आपको ज़िंदगी बसर भी करना है अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ। मगर इस फैमिली की अगर मैं बात करूं, इनके पास बिल्कुल कोई ज़रिया, कोई ऑप्शन, कोई सहारा बिल्कुल है नहीं इनके पास। मैं आपको बता दूं, ये जो एक कमरा है, इसी एक कमरे में किचन भी है, इसी एक कमरे में ये रात को सोते हैं, इसी एक कमरे में ये बैठते भी हैं। मतलब कि हर एक ज़िंदगी का हर एक वो असूल इसी कमरे में बैठ के वो अंजाम देते हैं। ये कमरा एक कच्चा सा कमरा है, कोई पुख्ता नहीं है। ये इनके बाबा जो है, इनके वालिद साहब जो है, इन बच्चों के वालिद साहब है, उनकी मेहरबानी है। सवाल यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पे उठता है, सवाल यहाँ के तहसीलदार पे उठता है, सवाल हर एक उस जिम्मेदार शख्स पर उठता है जो कि इंतज़ामिया में इस वक्त बरसर इक़्तिदार में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरा मुतालबा उनसे है, मेरा सवाल उनसे है
ऑफिसों में बैठ के आप काम तो करते हैं, मगर उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए करम अगर आप अपने ऑफिसों से बाहर निकलेंगे और ऐसे जगहों का दौरा करेंगे, ऐसे इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ पर आपको कई सारे ऐसे फैमिलीज मौजूद पाएंगे। और मैं ख़ासकर इस वक्त अलमनार पोशकर की बात करूंगा जो कि वस्ती कश्मीर ज़िला बडगाम में वाक़या है। वहाँ पर ये फैमिली किस दर्द भरी हालात में इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से आपके डिस्ट्रिक्ट में कई एक सारे ऐसी स्कीमें मौजूद हैं जिन स्कीमों से शायद ये अपना घर बसर कर सकते हैं, शायद ये अपना कोई नया सा घर बना सकते हैं, शायद इनके लिए वो बाथरूम मैसर हो जिस बाथरूम में ये अपने हाथ मुँह पैर धो सकते हैं, शायद ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो इनके हालात इस वक्त बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे, शायद उन हालातों में कमी हो सकती है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यहाँ आया जिस तरीके से मैंने इस मकान को देखा, जिस तरीके से मैंने इस एक कमरे को खाली देखा, ये तो मैं कहूँगा कि ये तो अल्लाह के रहम व करम पर इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा, मैंने यहाँ के रिश्तेदार जो इनके हैं या इनके हमसाया जो नेबर्स हैं उनके साथ मैंने बात की, उनका भी यही कहना है कि इनके पास कोई अल्लाह के सिवा कोई हामी व नासिर नहीं है, इनके पास अल्लाह के सिवा कोई ऐसा साया नहीं है जो साया फरिश्ता बनकर इनके सामने आ सके और इनकी भरपूर अमदाद, इनकी भरपूर मदद फराहम कर सके। أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيقا। अजीज़ कश्मीर के लोग जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे लोगों का भी सलाम करता हूं, मैं ऐसे लोगों को भी सलाम पेश करता हूं जो लोग इस दर्द भरी कहानी में आगे आए, इनकी भरपूर माउनत की, इनकी भरपूर मदद की, जितना इनसे हो सका इन्होंने भरपूर अपनी मदद इनको फराहम की। इनके चाचा है यहाँ पर, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा किस कदर इनको मुश्किलातों से गुज़रना पड़ा इनकी फैमिली को और क्या कुछ आप इस बारे में कहते हैं कि आने वाले वक्त में इनकी ज़िंदगी संवर सके, आने वाली ज़िंदगी में ये अपना मुस्तकबिल रोशन चिराग दे सकते हैं। इनके चाचा हैं इनके साथ, उनसे जानने की कोशिश क्या ना हो सकता है। गुलाम मलिक गुलाम साहब तो इन में क्या दलील है कि फैमिली पन्नी अच्छो वुश वगैरह यहाँ ज़िंदगी कसा वस मुश्किल ये बीमार 5-8 वरी पता और मदद करान तो पकानस और ये चोलस किम गो सज माह रमजान मान चुक कह सहारा सहार चुक कह मतलब बचस लकट। ठीक इहंदिस वालिद साहब यानी कि तुम बरादारी खुदा टाइम को तमन अलील आसन मतलब लगभग 5-8 वरी तकलीफ क्या तमन ये शुगर बे छत खराब बे प्रेशर बकवचन पत मान छत एक्सरे करान नारानस अंदर त खराबी बत गुजर दरिया न क्या करे कोशिश सड़ा। आपको सलाम पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद ऐसे है कि आने वाले वक्त में आप इनके साथ शाना बशाना रहेंगे इंशाल्लाह। लोग भी और हम भी, मैं एक बार फिर से ऑन कैमरा पे ये बात करना चाहता हूँ कि हम भी इंशाल्लाह पूरी मदद फराहम करेंगे इनको जितना हमसे हो सकेगा। हमारी पूरी टीम रियल कश्मीर न्यूज़ पूरी इसमें अपनी अमदादी कार्रवाइयाँ जारी व सारी रखेंगे। और रिश्तेदार है यहाँ पर, एक और नेबर है इनके यहाँ पर, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो भी हमारे साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। ये भी इनके नेबर है यहाँ पर, तो उनसे बात करेंगे क्या कुछ इनके हालात इस फैमिली के हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद बशीर अहमद है। जी बशीर साहब, आप ये बताइए कि चूँकि आप यहाँ के ज़िम्मेदारान एक शख्स है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक फ़र्द ऐसे है, क्योंकि आपकी तरफ से मैं आपको पहले सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें कॉल करके इनके बारे में इत्तला दी। बशीर साहब बताइए क्या कुछ हालात हैं इनके घर में भी? हालात इनके बहुत ख़राब हैं, जैसे कि आपने कहा, और ये हकीकत है कि 8 साल से वो बीमार था। तो बीमारदारी में बहुत पैसा भी खर्च होता है और गरीब के पास कितना पैसा होगा। फिर भी इनके जो ये भाई हैं वो यहाँ जो हमसाया है, इन्होंने थोड़ी बहुत मदद की उसको वक्तन फ़क्तन, वो चलता रहा। लेकिन घर में वाहिद कमाव था, कोई कमाने वाला और नहीं है। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी बीवी है। तो
ज़ाहिर है कि पालने के लिए पैसा होना चाहिए, जब वो बीमार पड़ गए तो कहाँ से पैसा आता है। बहरहाल ऐसे तैसे करके उन्होंने तो ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पिछले 3 महीनों से वो ज़्यादा अलील थे, तो इसी हालत में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आप पीछे छोड़ गए हैं अपने लवाकिन, तो आप ये समाज का फ़र्ज़ है कि वो इनकी भरपूर मदद करें ताकि बच्चे कुछ पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और अपना गुजारा कर सकें। ये हम सब का फ़र्ज़ है और इसमें हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, और बाकी जो साहिब सरवत लोग हैं, NGOs हैं, और हमारे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो हैं, इनके पास स्कीम्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनका कच्चा मकान है, एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो इनके पास जो स्कीम है इनको पहले ये डिज़र्व करते हैं, इनको सबसे पहले वो मकान मिलना चाहिए था। इनका बाथरूम नहीं है, इनको बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ीस नहीं है, इनको खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इसका कुछ हल निकलना चाहिए। तो हल निकालने के लिए हम भी हैं, जैसे हम सिविल लोग हैं, हम यहाँ इनके हमसाए हैं, इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है और NGOs का भी, और दूसरे जो साहिब सरवत लोग हैं कि वो इनका भरपूर माली इमदाद करें। चलिए, हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिल्कुल फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने ऑफिस से निकलकर ऐसे जो फैमिलीज़ है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे यतीम बच्चे, जहाँ पर ऐसे मोहताज, जहाँ पर ऐसे मिस्कीन बच्चे आपको मिलेंगे, ऐसे तबके से ऐसे फैमिलीज़ आपको मिलेंगे जिनका कोई सहारा नहीं है। उनको चाहे कि मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर जो बड़गाम के हैं कि वो यहाँ पर अलमनार पोस्ट जो इलाका है खाक तहसील पर जाता है, वहाँ पर आए, ऐसे फैमिली के सामने रूबरू हो जाए और देखिए कि किन हालातों से इस वक्त दो चार है, किन हालातों से इस वक्त ये गुजर रहे हैं। बदकिस्मती की बात ये है कि उनके पास बाथरूम अवेलेबल नहीं। ये बड़ी बदकिस्मती बात, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्कीमें ये सामने लाते हैं, उन स्कीमों का ये फ़ायदा उठाते हैं लोग, मगर बदकिस्मती की बात है, मुझे लगता है कि ऐसे गरीब कम्बों का, ऐसे गरीब ख़ानदानों को इस स्कीम से बिल्कुल महरूम रखा जा रहा है। और वो स्कीम मुझे लगता है कि बड़े ख़ानदानों पर ये लोग मुसलत करते हैं, बड़े ख़ानदानों के लिए वो लोग इशू करते हैं, और मुझे लगता है कि उनको ये आखिरत में जवाब देना पड़ेगा कि आपने, अगर आपके पास इक़्तिदार था, अगर आपके पास पावर था, अगर आपके पास अथॉरिटी थी, तो आपने ऐसे गरीब, मिस्कीन, यतीम, लाचार, मोहताज फैमिलियों का आप ज़रिया क्यों नहीं बने? अगर आपके पास सब कुछ था तब आपने इनकी मदद क्यों नहीं की? ये सवाल आपको आखिरत में पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक कश्मीरी ने यह सबूत दिया है आज तक कि हर एक उस कश्मीरी ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया है। हर एक कश्मीरी ने ऐसे इंसानों की भरपूर मावनत की है जैसे इंसान ये जैसे फैमिली थे, क्योंकि इनके पास कोई सहारा नहीं है। तो जाते जाते आखिर में मेरा यही आपसे अपील रहेगी, मेरा यही आपसे गुजारिश रहेगा कि यहाँ की इंतज़ामिया को अब जागना चाहे, क्योंकि मुझे लगता है वो गफलत की नींद में सोए हुए हैं इस वक्त। अपने ऑफिस से निकल कर मुझे लगता है उनको यहाँ पर आना चाहिए। हमें ऐसे ख़ानदानों, हमें ऐसे फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो फैमिली इस वक्त दरगुजर है, जो फैमिली इस वक्त अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से मुश्किलातों से गुजर रही, न उनके पास खाने के लिए है, न उनके पास रकम है, न उनके पास कोई ऐसी जायदाद है, न उनके पास कोई ऐसा सहारा है, तब जाके वो अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की सूरत हाल के मुताबिक गुजार सके, तब जाके वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते। अब चूँकि सबसे ज़्यादा अहम ये है कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बच्चे, इनका मुस्तकबिल एक शम्मा की तरह होता है, क्योंकि जिस तरीके शम्मा एक हम रात को जब शम्मा जलाते हैं वो पूरे घर को रोशन कर देता है, उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इन बच्चों में वो रोशनी, वो चिराग इस वक्त मौजूद है। अब उस चिराग को आगे बढ़ाने के लिए हमारा फरीज़ा बन जाता है, आपका फरीज़ा बन जाता है कि हम इनकी भरपूर मावनत करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर हमने दिया है, तो उसमें जितना हो सके, क्योंकि कतरे कतरे से समंदर भर जाता है, तो अगर आप 1 रुपया भी मावनत करेंगे तो 1 रुपये से शायद इनकी ज़िंदगी संवर सकती है, शायद इनकी ज़िंदगी मुस्तकबिल के लिए बड़ी अहमियत रखेगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही मबनी सच्चाई कहानी हम आपके साथ, आपके सामने ला कर रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अज़हर शाहीन, मेरे साथ कैमरामैन मुसाइब, रियल कश्मीर न्यूज़, बड़गाम।